Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Hello and welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. So today I'll be doing a reaction video. This video is on Atul Subhash's case, which is going on right now. And मैं श्वेता को बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ. Recently I found his channel. I really liked his content. बहुत अच्छा, मतलब like it's too good. मतलब I regret not finding his channel, not finding his channel earlier. But I found it, and like his thinking, like I really like his thinking, the way he like breaks down the like the reactions and whatever the thinking and whatever the reactions he gives. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब तुमको लगेगा यू आर अ सेन पर्सन, बट ये आदमी ऐसा ऐसा मतलब लॉजिक लेके पूरा तुमको बिठा के ऐसा ऐसा मतलब पूरा साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ऐसा ऐसा बोलेगा ना, तुमको लगेगा तुम कुछ नहीं जानते हो. और वैसे ही जब आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज वीडियोस आई वाज लाइक यस, आई मीन यस, यू आर राइट, इट परफेक्टली मेक्स सेंस. सो I wanted to do a video on Atul Subhash, but I thought let's see Shweta's perspective because he'll be the better judge. So let's see what he thinks and what he thinks about this creator and what I think about the whole situation. It is my opinion. So yeah, let's watch it. मेरा भाई कैसे हो? कितना काम किया नीचे कमेंट से लोगों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, काम कितना कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में, जितने भी अटैकर्स है कर भाई कैसे हो? कितना काम किया नीचे कमेंट भाई, अटैकर्स कैसे फाड़े हमारे साथ जुड़. men's rights, but because they want Did she have like a disdainful face when she said men's rights? Did she? I'll rewind. men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, She did. but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept Okay, let's start from the beginning again. of men want women to talk about the recent Atul Subhash case? Not because they feel strongly about men's mental health. How do you know that? How did you make that claim? Let's simple study करते हैं इसको. ये इसको logic के अंदर आता है argumentation में. A lot of men want other people to talk about Atul ka case. Let's say that's a fact, right? A lot of people want other people to talk about this, not because they care about men's mental health. How do you know that? तुम्हारा starting का जो premise है, इसमें ही सारी problem आ जाती है. तुम apparently तुमने लिख रखा है तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो. आई वुड इमेजिन तुमने एमएससी कर रखी है. एमएससी मतलब तुमने कहीं कुछ जाके रिसर्च तो करी होगी, मास्टर्स की थीसिस तो लिखी होगी, तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो रिसर्च पता ही है. क्लिनिकल साइकोलॉजी एक एम्पेरिसिस्ट पॉजिटिविस्ट साइंस है. दो चीज आ जाती है इसके अंदर, हाइपोथेसिस और एम्पेरिकल फाइंडिंग्स में जमीन आसमान का फर्क होता है. तुमने कहा कि लोग ये करते हैं क्योंकि मुझे पता है उनको मेंटल हेल्थ से फर्क नहीं पड़ता, उनको मेन की मेंटल राइट से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट करना है. Here, whatever he is pointing out, I totally agree with him. She is assuming कि मतलब they want to talk about, like यहाँ ना वो assumption आ जाता है. So he is totally right. Like I totally agree with him कि तुमको कैसे पता? How do you know? So yeah. प्रूफ क्या है तुम्हारे पास का? तुम एक साइंटिस्ट हो या तुमने एटलीस्ट साइंस एक सेकंड के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है? राइट ऑफ द बैट स्टार्टिंग कैसे करते हैं सेंटेंस को? आई बिलीव, आई थिंक, माई ओपिनियन इज. That's when what you're stating becomes a hypothesis. But you should never start something जिसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम है, एक मोनोपोली ऑफ ट्रूथ है कि मुझको पता है सत्य क्या है और कोई एविडेंस नहीं है. तो तुम्हारा क्लेम तुमने खुद ही बोला अपने से और फिर खुद ही उसको सब्सटैंशिएट कर दिया क्योंकि मैंने बोला. ये सर्कुलर लॉजिक है. आर्गुमेंटेशन में इसको वाहियात लॉजिक कहते हैं. दूसरा पॉइंट,
आई थिंक तुमने शायद सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी तो होगी, बैचलर्स में पढ़ी होगी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ा था। व्हाट यू जस्ट सेड, तुम्हारे में अभी सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही हूं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेन वांट टू टॉक अबाउट अतुल सुभाष because they don't care about mental health, they want to discredit feminism. Only one truth can prevail. हम सिर्फ एक ही तरीके से सोचेंगे। She said, मुझे लगता है अगर कोई मुझसे गलती से मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है आदमी की, तो वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट ही। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में किसी भी वर्ल्ड व्यू को फॉर्म करने के लिए बायस से शुरू होता है। ये आता है कॉग्निटिव बायसेस के अंदर, जो आई अज्यूमिंग तुमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, which you have clearly forgotten. बट कोई और वर्ल्ड व्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता फेमिनिज्म के अलावा चीजों को देखने का। यानी कि मे बी दिस हैज नथिंग टू डू विद फेमिनिज्म। ये Yes, true. I totally agree with this. This is my opinion. कि एक ही ओपिनियन है, बिकॉज एक ओपिनियन के बारे में वी आर टॉकिंग, सो वो ओपिनियन को लेके ही वी आर गोइंग। सो या आई अग्री विद दैट कि एक ही ओपिनियन नहीं हो सकता, बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। लाइक शी इज लाइक पुशिंग कि नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज फेमिनिज्म के बारे में। बट या आई टोटली अग्री विद श्वेता। डिफरेंट इश्यू है, हमसे हो ही नहीं सकता। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे दिमाग में, एक ही तरीके से देख सकते हैं हम चीजों को। दूसरा, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? लोग कोई बाइनरीज नहीं होते, लोगों की मोटिवेशंस बाइनरी नहीं होती। ये सब रिसर्च में है। लोगों की मोटिवेशंस कोई ये भी नहीं होता कि आज मैं कह रहा हूं मैं ये बिलीव करता हूं, और वो सब्जेक्ट नहीं है टू इन्फ्लुएंस सिचुएशनल और इमोशनल फैक्टर से, हार्मोनल फैक्टर से। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, इवन तुम क्या सोचते हो या तुम क्या कर्म करोगे, कई बार सिंपल, मैंने कुछ सुबह खाना खाया है, सब रिसर्च साइट कर रहा हूं मैंने सुबह कुछ खाना खाया और वो मेरी डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड उस मोमेंट में मैं हो सकता है ऐसी चीज कर दूं जिसको मैं फंडामेंटली कहता हूं मैं कभी नहीं करूंगा, और हो सकता है मैं अगले दिन रिग्रेट करूं मैंने क्यों किया। ये तुम सब करते हो। मोटिवेशंस अनेक हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे मर्द जो हो सकता है भाई, थ्योरेटिकली अगर आप उनसे किसी इंटरव्यू में पूछोगे भैया तुम फेमिनिस्ट हो, कहेंगे भैया मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूं। पर तुम ऐसे कितने केसेस देखोगे जहां पे उनके ओपिनियंस इन्हें फेमिनिस्ट स्टांस ले रहे हैं जिसको तुम विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि एक्चुअल इंसान के व्यूज, ओपिनियंस, भावनाएं एक्चुअल में इवेंट बाय इवेंट डिपेंड करती हैं। वो दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। इवेंट बाय इवेंट लाइक चेंज होता है। लाइक कोई न्यू इंफॉर्मेशन जब आता है, आई थिंक अबाउट दिस थिंग इन दिस वे, बट कोई एक नया इंफॉर्मेशन आया, देन आई वाज लाइक ओके हाँ ऐसा भी हो सकता है, राइट, ओके हाँ हाँ यही है। देन और एक इंफॉर्मेशन आया। सो एग्जैक्टली, event wise, new information wise, your thinking, your perspective, your opinion changes. That's true. इवेंट के एनालिसिस, उसने क्या महसूस कराया और उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारी औरतें तुम्हें मिलेंगी जो भाई कहेंगी हम तो फेमिनिस्ट हैं, बट इसी इश्यू में यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में होंगी, जो कह रही होंगी ये गलत हुआ है और हम इस लड़के से, इस इंसान से सिंपैथाइज करते हैं, हम समझ सकते हैं इसके साथ प्रताड़ना हुई है। ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसी खतरनाक कन्वर्जेंट थिंकिंग इतनी डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास ये बोलने का? कोई पता नहीं, जीरो जीरो। सिर्फ बायस से मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो इतना स्ट्रांगली रच रही हूं, जिसमें मैं एक डिस्डेनफुल लुक भी रख दे रही हूं, डिस्गस्ट भी दिखा दे रही हूं, मतलब बायस पे बायस पे बायस पे बायस, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और मेरा पॉइंट क्या है? क्लेम्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल about whom I have zero data. So I'm just judging humans basically. And I'm a psychologist. I just judged thousands and millions of strangers possibly. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Now moving on. Let's see what she says about Atul Subhash's case. Maybe she has actually very kind words. She has sympathy. Kuch bhi. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? Where are we going? Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. Yeah, but in this case, she wasn't. She is an AI engineer at Accenture. Wait, is she justifying the alimony जो वो मांग रही थी 3 करोड़ की? Bro, don't tell me the goats here.
is herself thinking she's goated or something. I just hope it's not. I'm in shock. I didn't realize this, but do you think this is what she's implying? क्योंकि why would you start talking about alimony with regards to this particular case जहाँ पे I don't think कोई भी इंसान जो ऑपरेट कर रहा है बेसिक कॉमन सेंस रैशनैलिटी एंड रीजनिंग से वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अब्यूज हुई है द नोशन ऑफ एलिमनी की आई डोंट थिंक कॉमन सेंसिकली लेड आउट एलिमनी जहाँ पे कोई भी बोथ पार्टीज में कोई भी वीकर है फाइनेंशियली आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने लेआउट करी है 8 तुम्हारे टेनेट्स लेआउट किए हैं कल कुछ पे डिबेटेबल है कुछ पे बहुत वेग हैं कुछ पे कुछ हो सकता है अभी मैनिपुलेशन द पॉइंट इज वो इसलिए ही हो रहा है बिकॉज सच थिंग्स एग्जिस्ट 3 करोड़ 1 करोड़ केस लगा देंगे एंड स्पेशली अ पर्सन जो अच्छी खासी जॉब है उस इंसान के पास Because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get she wasn't she's just completely using the issue like a person suffering to start lecturing about something जो कि is not even concerned with this topic like अगर ये बोट में है she's just going to pretend like यहाँ बगल में एक भयंकर वॉल्केनो नहीं फट रहा है एक इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो गई like I understand मैं हमेशा women की साइड लूंगी let's just say that basic empathy तो रख सकते हो इंसानियत पे कि यार जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था स्टेटिस्टिकली तुम देखो तो भाई सेल्फ डिलीशन रेट मेन के आई थिंक 2 to 4 टाइम्स है लड़कियों से तो ये इशू बहुत ज्यादा बड़ा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंभीर है शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम रियली गोइंग टू यूज कोटेशन मार्क्स नाउ द थिंग इज इट्स insanely scary to hear a psychologist waft through an issue and not extend any empathy अरे बेसिक ह्यूमन एम्पैथी ह्यूमन व्यक्ति था इंसान था आई एम इन शॉक राइट नाउ educated or and financially she thought of this as a funny sort of quirky video because she put angles and she thinks it's like a roast thing like intentionally again this is my hypothesis by the way I don't know this I know कि YouTube कैसे ऑपरेट करता है and of course I've been a YouTuber influencer for 10 years तो इतना तो समझ है ही जब हम इतने सारे कैमरे एंगल्स यूज कर रहे हैं what kind of content we're making right it's not very serious content let's just say we're just trying to be like mm, uh you're doing that but you're doing that on top of what अ ट्रेजेडी क्या तुम आरजी कर पे कोई लड़का ऐसा वीडियो बनाए एक्चुअली में एक ने बनाया था हमने परखच्चे उड़ा दिए थे उसके independent. Now, if you have a problem with the laws protecting this is comical she's doing comical stuff but this is like I think distasteful to a point where it's borderline cruel borderline like mean से हम बाहर जा चुके हैं because I believe in my personal opinion again she lacks sensitivity basic human sensitivity and तुम psychologist हो women, maybe you should become a feminist and empower the women. wow. That will make them financially independent. By the way, She was financially independent. This is a tone deaf video and also brain dead video. even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? Okay, so her video was like spite video. This is called not reading the room. Like I agree on the part तुम्हारा last में कि you know, hey, alimony should be जिसको जो whoever earns more and based on तुम्हारा just duration of a marriage. But वो सब rules हमारे Supreme Court ने layout किए हैं, so I'm not gonna go into that. But end में like all of this, like it's sort of a spite video. That's what I feel. So it's like basic lack of empathy, humanity, sensitivity, maturity, sensibility, wisdom, intelligence. कुछ नहीं है इसमें मेरी साइड क्या कहती है और इवन दो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं घुसेड़ दूंगी क्योंकि मैं रूम रीड नहीं कर सकती बिकम अ फेमिनिस्ट एंड स्टार्ट एम्पावरिंग वुमेन सो द नीड फॉर लॉस प्रोटेक्टिंग वुमेन गोज अवे शी वाज एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड एन एम्पावर्ड वुमन सो reality lastly google something about dark traits just because मैं research की बात कर रहा हूँ I just kind of want to share this research further basic evidence for the dark ego vehicle principle which you should research what it is higher pathological narcissism is associated with greater involvement in feminist activism not saying anything just pointing out a research guys ये आज की I cannot even start. Like, I totally agree with Shweta because whatever she said, it was very tone deaf. Because I don't know ki
एक केस चल रहा है, वहां से हाउ कैन यू लाइक फेमिनिज्म को घुसेड़ के फिर एलिमोनी को घुसेड़ के फिर मतलब बहुत आई डोंट नो मतलब व्हाट ही सेड कि it is a spite video and she was doing a comical thing. I totally agree with him. uh, मतलब अगर ये वीडियो किसी और पर्सपेक्टिव में किसी और सिचुएशन में होता तो आई वुड हैव टोटली अग्रीड विथ हर, बट ये जब वो एक सेंसिटिव केस है उसको उसको बेस रख के तुम उसके ऊपर यू आर डूइंग दिस वीडियो, it's actually distasteful. That is my opinion. I am saying only my opinion. I don't know about the general people or whatever. So yeah, um, let's see whatever Shweta is saying next. स्टडी हो सकती है सबके लिए नीचे आज का साइकोलॉजिकल आर्टिकल एंड जिसको नहीं पढ़ना, छोटा सा तात्पर्य ये है, जिनके अंदर नार्सिसिज्म होता है, ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म, मुझे सबके सेंटर में रहना है, वो स्पेशली एक्टिविज्म सीख करते हैं ताकि वो समाज की नजर में अच्छे दिख सके हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या होती है, एक्टिविज्म में वो जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को हाईजैक करके अपने आप को दिखाते हैं मैं कितना अच्छा इंसान हूं, तुम कितने खराब इंसान हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट है एट द एंड ऑफ द डे, जो भी मेरी चीज से अग्री नहीं करता वो दो कौड़ी का इंसान है, तुम लोग मेंस राइट, ऐसी चीजें करते हैं वो लोग। सो इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ो, मे भी हेल्प करेगा। बाकी तुम सब काम करो, जिसने अटैक मोड नहीं उठा रखा अटैक मोड उठाओ। So, as I said, I totally agree with Shweta, whatever he said. And this case of Atul Subhash, which is going on, इस केस को फेमिनिज्म पेट्रियार्की इसमें मत ढालो। एक इंसान का ही लेफ्ट अस, उसने पूरा मतलब क्या हुआ है उसके साथ पूरा उसने वीडियो दिया है, उसने पूरा लिखा है उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ, मतलब उसके साथ मतलब कौन से पोजीशन में वो चला गया होगा कि उससे नहीं हुआ। अभी इस केस को अगर फेमिनिज्म पेट्रियार्की इससे मतलब तोलोगे, इससे घुसेड़ोगे तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। He said that if I don't get justice then मेरे जो अस्थियां हैं वो गटर में बहा देना। I'm sorry to say, but he will not get justice. I knew that. Everyone knows that. So खराब लगता है obviously। हाँ, जहाँ we want women to be protected, we want equal rights, वहाँ मतलब ये सब के चक्कर में लड़कों के ऊपर या फिर जो मेन हैं उनके ऊपर भी मतलब जो स्यूडो फेमिनिज्म होता है ना, जो ये सब मतलब ये सब चक्कर ये सब जो मतलब लॉज है व्हाटएवर टू प्रोटेक्ट द वुमेन, वो लेके जब ऐसे लोगों के ऊपर मतलब विक्टिम बनाया जाता है तब खराब लगता है। जैसे कि मैंने कहा था कोलकाता केस में, नॉट ऑल मेन, not all women obviously, but this is a wake up call. We should be looking into this and we should be aware of this, क्योंकि क्या पता और कितनों के साथ, कितने लड़कों के साथ या कितने लोगों के साथ या कितने जो मतलब मर्द है उन लोगों के साथ ये सब हो रहा है, एंड दे आर नॉट एबल टू come forward and say the things because लाइक जो लड़के होते हैं या फिर मर्द जो होते हैं वो ज्यादातर दे ट्राई टू मतलब अपने से ही दे वांट टू टैकल द सिचुएशन एंड एवरीथिंग, वो अपने से ही सब कुछ करना, वो मतलब ऐसे बाहर नहीं आती। ये केस बाहर आ गया बिकॉज इतना दिन मुझे हम लोगों को पता नहीं था, ये केस बाहर आया बिकॉज ही लेफ्ट अस। सो या, we should be very mindful what we say, what we do about this case, क्योंकि ये जो वीडियो था बहुत टोन डेफ था obviously. I totally agree with Shweta, and do let me know what are your thoughts in the comments,
and do subscribe the channel. And whatever your thoughts are there, do let me know in the comments, and share, like, subscribe, whatever it is. And I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.